बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीक्रेट वर्ड एक खुफिया दुनिया के बारे में पढ़ेंगे और वो है इलेक्ट्रिक फ्लो। कैसे बिजली जो हमें नज़र नहीं आती वो सर्किट में से तारों में से कैसे गुजरती है उसके बारे में आज हमने पढ़ना है। आज हम स्टडी करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स एंड व्हाट आर द स्टेट एंड द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। लेकिन उसमें डिटेल में जाने से पहले आइए ये मैडम ने आपके लिए वीडियो बनाई है उसे देख लेते हैं और सुन लेते हैं। पूरी तवज्जो से सुनिए, ये इंग्लिश में है लेकिन बहुत सादा और आसान इंग्लिश में मैंने मैडम से बनवाई है, तो आइए सुनते हैं। All right, hello and welcome. Today, we're going to do something really, really cool. We're not just going to talk about electricity. We are going to build a working electric circuit right from scratch. So let's get into it. I mean, it seems so simple, right, doesn't it? You just flip a switch and boom, light just happens. But what's actually going on in there? What are the absolute must-have pieces you need to make that magic happen? Well, that's exactly what we're about to find out. So before we can even think about building, we have to understand our power source. You can think of it like the fuel for our little light bulb. What is this energy we're planning to harness anyway? Okay, the most important word on this slide is flow. The power we're using is called current electricity, and it's all about the movement, the flow of electric charge. It's kind of like water moving through a pipe. That constant, steady flow is the electricity we're going to use. It makes sense, right? If our electricity is a flow, it needs a path to follow. It can't just spill out all over the place. And that complete, unbroken path, from the start all the way to the end and back again, that's what we call an electric circuit. It's our roadmap, the track our energy is going to run on. Okay, so we've got the basic ideas down. We need a flow and we need a path. Now it's time to get our hands dirty, so to speak. Let's actually gather the parts we need for our build. This is our circuit toolkit. And here's the cool part. For any simple circuit, you really only need 4 things. That's it. We need a source to provide the power, a device that's going to use the power, some connections to carry it all, and finally, a way to control it. Let's break each one down. First up, the source. This is the heart of the whole operation. It's our engine. A battery or a cell, they're basically little powerhouses. They provide the push, or what's technically called voltage, that gets the electric charge moving through our circuit in the first place. Next, we need a reason for building this thing, right? That's our device. It's the whole point. This is the part that takes that electrical energy and turns it into something useful, like light from a bulb or motion from a fan. It's the part that actually does the work. Okay, now for the connections. We've got a source and a device, but right now they're just sitting there, not talking to each other. We need to link them up. That's where conductors, like copper wires, come in. They're like the superhighway for our current, creating that physical path for the energy to travel along. And finally, the master component, control. We probably don't want our light bulb on forever, do we? We need a way to start and stop the flow of electricity whenever we want. And that, of course, is the job of the switch. It's our on-off button. So, we've gathered our source, our device, our connections, and our control. All the pieces of the puzzle are laid out. Now comes the best part of any build, putting it all together and seeing it work. And this is how that little switch does its magic. When the switch is off, the path is broken. We call that an open circuit. Think of it like a drawbridge that's up. The current just can't get across. But the moment you flip that switch on, you complete the path. That's a closed circuit. The bridge is down, the road is clear, and the current can flow freely. So with our path complete, our closed circuit lets that charge flow from the battery through the wires into our light bulb. And just like that, it glows. We did it. We've built a complete working circuit from scratch. That feeling of success is pretty great, isn't it? But you know how it is. As soon as you finish one project, you're already starting to wonder, okay, what can I build next? Where do we possibly go from here? Because honestly, making one little light bulb glow, as cool as it is really just the starting line. The simple design we just put together is the foundation for everything. But believe me, it is not the only way to build a circuit.
As things get a bit more advanced, you'll find there are two main blueprints that are used all the time, something called a series circuit and another one called a parallel circuit. And they each have their own unique set of rules and are used for very different things. So I'll just leave you with this little thought experiment. You now know the four essential pieces to make one bulb light up. But what if your next project needed two bulbs, or three, or a whole string of holiday lights? How would you connect them all? And what do you think would happen if you chose one path over the other? Definitely something to think about. All energy is a form of flow. एनर्जी जो भी एनर्जी होगी वो फ्लो करती है, जब वो चलती है तो वो एनर्जी हमारे काम आती है. When we think of a still pond, अगर हमारे पास एक पानी का जोहड़ है, एक तालाब है, उसमें पानी रुका हुआ है, वो पानी जो रुका हुआ है वो जब बहना शुरू करेगा तो वो जब भी किसी चीज़ के ऊपर से गुजरेगा या जो भी उसके अंदर एक पावर आ जाएगी, उसके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी, वो एनर्जी हमारे काम की होगी. इसी तरह बिजली भी जब किसी बैटरी में या किसी सेल में या किसी सोर्स में रुकी हुई होती है तो वो उस वक्त काम नहीं करती. जब वो किसी रास्ते से किसी चीज़ में से गुजरती है तो उसे चलाती है. तो जब बिजली या चार्ज चल रहा होता है तो उसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. When we think of a still pond, the water has potential. पानी रुका हुआ है, उसके अंदर पोटेंशियल होता है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है. इसी तरह जो बिजली जब रुकी होती है, चार्ज जब रुका हुआ होता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है. बट व्हेन और जब पानी फ्लो करता है तो उसके अंदर पावर आ जाती है, उसके अंदर एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से वो आगे काम करता है. इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी वर्क्स द सेम वे. जिस तरह पानी एक जगह पे एक तालाब में रुका हुआ होता है और उसके अंदर पोटेंशियल होता है, इसी तरह जब बिजली किसी बैटरी के अंदर या सेल के अंदर या किसी सोर्स के अंदर मौजूद होती है तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है. The electricity produced by flow of charge is called current electricity. जब ये चार्ज बहना शुरू करता है तो इसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. यानी किसी भी सोर्स में से जब बिजली गुजरती है, जब किसी पाथ में से बिजली गुजरती है तो हम उसे फ्लो करती है तो उसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. तो स्टूडेंट्स, to understand electricity, let's think about water. हम बिजली को समझने के लिए, क्योंकि बिजली हमें नज़र नहीं आती, हम पानी की मिसाल लेते हैं. जिस तरह पानी होता है और वो पाइप में से बहता है और वो गुजरता है और एक मोटर जो नीचे टैंक में लगी होती है वो पानी को पुश करती है और पानी ऊपर जाता है, और जब वो पानी वापस आता है और किसी चीज़ के ऊपर गिरता है तो वो चीज़ घूमना शुरू हो जाती है, वो चीज़ चलना शुरू हो जाती है. The abstract word of circuit becomes clear when we compare it to familiar system. हम बिजली को चूँकि देख नहीं सकते, उसके फ्लो को हम उस तरह से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो हम पानी की मिसाल लेते हैं, प्लम्बिंग की मिसाल लेते हैं. थ्रू आउट दिस गाइड आगे जितनी भी हम बातें करेंगे पानी की ही मिसाल को सामने रखेंगे. तो जिस तरह पानी पाइपों के अंदर से गुजरता है और एक मोटर उस पानी को पुश करती है और उसको मूव करवाती है, इसी तरह जो बैटरी है, जो सेल है, वो या सोर्स है, वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाता है. तो एक जिस तरह पानी पाइपों में से बहता है, इसी तरह बिजली तारों में से बहती है. तो स्टूडेंट्स, एवरी फ्लो नीड्स अ पाथ. जो भी चीज़ होगी उसको क्या होगा, उसको चलने के लिए एक पाथ चाहिए होता है, एक रास्ता चाहिए होता है. पानी है तो फ्लो करेगा तो उसको पाइप चाहिए, उसको कोई रास्ता चाहिए फ्लो करने के लिए. फॉर करंट टू फ्लो इट मस्ट हैव अ डेडिकेटेड अनब्रोकन रूट टू ट्रेवल along. In electricity, this complete path is called an electric circuit. बिजली को भी इसी तरह चलने के लिए, मूव करने के लिए एक मुकम्मल रास्ता चाहिए. वो मुकम्मल रास्ता
जो कि करंट बहने के लिए ज़रूरी होता है, उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ठीक है, इन इलेक्ट्रिसिटी दिस कंप्लीट पाथ इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। बिजली का मुकम्मल रास्ता इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंप्लीट पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो रास्ता जिसमें बिजली गुजरती है, करंट गुजरता है, वो मुकम्मल रास्ता इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, द पुश वेयर द जर्नी बिगिंस। जिस तरह हम कहते हैं कि पानी के अंदर एक मोटर हम लगाते हैं, तो वो मोटर पाइपों में से पानी को पुश करती है और पानी इस तरह पाइप्स में से गुजरता है। इसी तरह बिजली को भी कोई ना कोई सोर्स चाहिए, उसको कोई ऐसी पावर चाहिए, ऐसी कुव्वत चाहिए जो उसे पुश करे। तो वो जो पावर होती है, वो जो जरिया होता है, उसे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, जैसे बैटरी है या सेल है। एवरी सर्किट नीड्स अ सोर्स ऑफ पावर टू पुश द इलेक्ट्रिक चार्ज अलोंग द पाथ। ये बैटरी है, जिस तरह बैटरी जो है वो एक तरह का सोर्स है जो कि करंट को पुश करता है ताकि वो उस रास्ते पर उस सर्किट में से चल सके। दिस इज टिपिकली अ बैटरी और सेल। ये बैटरी या सेल जो क्या करता है, ये उस करंट को बहने में, इलेक्ट्रिक करंट को उस पाथ में चलने या उसको बहने या उसको फ्लो करने में मदद करता है। जिस तरह के मोटर, हमारी पंप जो है वो पानी को पुश करता है और पानी पाइप्स के अंदर बहता है। तो सोर्स क्या होता है जिससे बिजली मुहैया होती है? वो बैटरी भी हो सकती है, वो सेल भी हो सकता है, या कोई वो वापडा की बिजली जो बाहर से आ रही होती है वो भी सोर्स हो सकता है। एक तो हमें चाहिए, रास्ता चाहिए बिजली को, करंट को के लिए हमें एक सोर्स चाहिए जो बिजली पैदा करे और जो बिजली को पुश करे ताकि वो करंट सर्किट में बह सके। किसी सर्किट के अंदर जो दूसरी चीज जो बहुत अहम होती है, जिसके लिए ये सारा कुछ हम करते हैं, वो है डिवाइस। कोई बल्ब हो, कोई पंखा हो, या कोई भी ऐसी चीज, कोई हीटर है जो बिजली से चलता है, करंट से चलता है, करंट पर काम करता है। तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज हार्नेस टू परफॉर्म अ टास्क। ये करंट इसीलिए हम उसको चलाते हैं, फ्लो इसीलिए करता है ताकि हम उससे काबू करके हम उससे कोई काम ले सकें। दिस इज डन बाय अ डिवाइस। कोई ना कोई डिवाइस हम सर्किट में लगाते हैं, सच एज लाइट बल्ब that creates light or a fan that creates motion। हम कोई सर्किट में कोई बल्ब लगा दें या पंखा लगाते हैं ताकि वो मूव कर सके या बल्ब जल सके, रोशनी दे सके। तो सर्किट के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज सोर्स होता है बिजली का, करंट का, वो बैटरी या सेल होता है, और दूसरी चीज वो डिवाइस होता है, वो चीज होती है जिसको हमने चलाना होता है, जैसे बल्ब है या पंखा है, क्योंकि इसी मकसद के लिए हम सर्किट बनाते हैं। तीसरी अहम चीज जो है वो है वायर्स, तारें, जो इन डिवाइसेस को, सोर्स को, बैटरी को, सेल को उस डिवाइस के साथ जोड़ सकें। तारें चाहिए होती हैं, आमतौर पर कॉपर की तारें होती हैं। ये वायर्स जो है वो क्या करते हैं, ये कनेक्टर्स होते हैं जो करंट को फ्लो करने के लिए रास्ता मुहैया करते हैं। To connect the source of electricity to the device, we use wires or conductors. They create the pathway for the current to flow. तो वो करंट को फ्लो करने के लिए, करंट उस रास्ते को फॉलो करता है, उस पर चलते हुए उस सर्किट में से बहता है, उस डिवाइस में से गुजरता है और वो डिवाइस काम करता है। पंखा है तो वो चलेगा, बिजली का बल्ब है तो वो रोशनी देगा। तो ये तारें हमें चाहिए होती हैं। तो तीसरी अहम चीज जो है वो वायर्स हैं, जिनके जरिए वो करंट एक जगह से दूसरी जगह जाता है। इसके बगैर तो करंट बह नहीं सकता, करंट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, डिवाइस तक नहीं पहुंच सकता। तो जब तक डिवाइस तक नहीं पहुंचेगा उस वक्त तक वो सर्किट बेकार होगा, वो सर्किट काम नहीं करेगा, बल्कि वो सर्किट होगा ही नहीं।
तो हमने तीन चीज़ों की बात की है। सबसे पहले हमने कहा है कि एक सोर्स होना चाहिए सर्किट में, और एक डिवाइस होना चाहिए जिसको हम चलाते हैं, जिससे काम लेते हैं, और तीसरी चीज़ कनेक्टर्स हैं, वो तारे हैं या कोई ऐसा कंडक्टर जिसमें से बिजली गुजर सके। तो स्टूडेंट्स, एक और चीज़ सर्किट में बहुत ज़रूरी होती है और वो होती है कंट्रोलर, कि हम जब मर्जी उस सर्किट को ऑफ कर सकें, जब मर्जी हम उसको ऑन कर सकें। यानी वो बिजली उसमें से हर वक्त बहती ना रहे, जब हमारी मर्जी हो हम उसको बंद कर दें, और जब मर्जी हो हम उसे ऑन कर दें। और वो क्या होता है? वो स्विच होता है या वो बटन होता है। वो स्विच या बटन जो है किस काम आता है? ऑन या ऑफ करने के लिए। ठीक है, ये घरों में जो बिजली होती है उसमें हम बटन आप देखते हैं लगा हुआ है। कंप्यूटर के अंदर ये बटन लगे होते हैं, स्विचेस लगे होते हैं, ताकि हम उस फ्लो ऑफ करंट को कंट्रोल कर सकें। जिस तरह के पानी के पाइप के अंदर वाल्व लगा होता है, हम वाल्व के जरिए उसको पानी को जब चाहें बंद कर सकते हैं। नल के ऊपर एक वाल्व लगा होता है कि पानी जो है उसको जब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसे ऑन कर लेते हैं, उसे खोल लेते हैं, और जब हम पानी इस्तेमाल नहीं कर रहे होते तो उसे बंद कर देते हैं। तो इसी तरह बिजली के सर्किट में भी एक स्विच लगा होता है, एक बटन लगा होता है, जिसका मकसद क्या होता है? कि हम फ्लो को कंट्रोल कर सकें, और जब चाहें उसे बंद कर लें यानी ऑफ कर दें, और जब हमें ज़रूरत हो हम उसे ऑन कर लें। लाइट जब हमें ज़रूरत होगी हम ये स्विच ऑन कर लेते हैं, और जब हमें लाइट की ज़रूरत नहीं होती तो हम इसे ऑफ कर लेते हैं। तो चौथी चीज़ है स्विच, यानी सर्किट। हमने कहा है कि सर्किट बिजली के एक मुकम्मल रास्ते को कहते हैं। अ कंप्लीट पाथ ऑफ करंट इज कॉल्ड सर्किट। फिर हमने कहा है कि सर्किट के अंदर चार चीज़ें बहुत अहम होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्स, जो बिजली मुहैया करता है, करंट मुहैया करता है। नंबर टू डिवाइस, जो कि यूज़ करता है करंट को, जो बिजली को इस्तेमाल करता है। नंबर थ्री कनेक्टर्स, वो तारें या कंडक्टर्स जो कि बिजली को एक सोर्स से डिवाइस तक ले जाते हैं। और चौथी चीज़ जो है वो हमने कहा है स्विच है, जो कि कंट्रोलर है, जो कि ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये चार कंपोनेंट्स हैं, चार हिस्से हैं किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के। ए कंप्लीट सिस्टम असेंबलिंग द फोर की कंपोनेंट्स, इन चारों को जब हम असेंबल करते हैं, इन चारों कंपोनेंट्स को जब हम इकट्ठा करते हैं, जोड़ते हैं, तो उससे हमारा एक कंप्लीट सिस्टम बन जाता है, और जिसे इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। व्हेन कनेक्टेड द फोर कंपोनेंट्स, number one source, number two device, number three wires, and number four switch, form a complete electric circuit ready to control and use the flow of energy। यानी जिस तरह पानी जो है उसका एक सोर्स है, उसके साथ मोटर लगी है जो पानी को पुश करती है। एक डिवाइस है, आगे जो चीज़ है, जो चीज़ जिसको हम चलाते हैं या जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। और एक उसके अंदर पाइप होते हैं जो कनेक्टर होते हैं। और चौथी चीज़ वाल्व होता है जो कि उसको ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह बिजली के सर्किट में एक बैटरी है जो सोर्स है, दूसरा डिवाइस है जो यूज़र है, जो बिजली को करंट को यूज़ करता है, तीसरी चीज़ जो है वो स्विच है जो उसे कंट्रोल करता है, और एक जो है कनेक्टर्स हैं, वो तारे हैं जो कि जोड़ती हैं सोर्स को डिवाइस के साथ और स्विच के साथ। ये चार बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि सर्किट के स्टेट्स यानी सर्किट की हालतें कौन सी हैं। तो सर्किट की हालत दो हो सकती है, जैसे हमने कहा, या तो वो सर्किट ऑन होगा या ऑफ होगा। व्हेन द स्विच इज ऑफ, इट क्रिएट्स अ ब्रेक इन द पाथ। जब स्विच ऑफ होता है, जब बटन बंद होता है, तो सर्किट में एक ब्रेक आ जाती है, सर्किट टूट जाता है, सर्किट जो है वो ओपन हो जाता है, और उसमें से करंट नहीं गुजर सकता। द करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू इट, दिस इज एन ओपन सर्किट। एक ऐसा सर्किट जिसमें से करंट न गुजरे और जिसका स्विच ऑफ हो, उसे हम कहते हैं ओपन सर्किट। यानी एक सर्किट की हालत है, स्टेट है ओपन सर्किट, और दूसरी जो स्टेट है वो है क्लोज्ड सर्किट। क्लोज सर्किट में क्या होता है? जिस तरह बिजली का
पानी के पाइप में वाल्व बंद हो तो पानी नहीं बहता। इसी तरह जब इसमें से स्विच ऑफ होगा तो करंट नहीं बहेगा, लेकिन जब स्विच ऑन होगा, जब बटन ऑन होगा तो करंट उसमें से बहेगा। When the switch is on, the path is complete. जब स्विच ऑन होता है तो रास्ता मुकम्मल होता है। The current flows through it, powering the device. This is a closed circuit. तो जब स्विच ऑन होता है तो बिजली उसमें से बह रही होती है, और उसका नतीजा क्या निकलता है कि जो डिवाइस हमने लगाया हुआ होता है, बल्ब है या पंखा है या कोई हीटर है या जो भी चीज़ हमने लगाई है, वो चलना शुरू हो जाती है। तो जब स्विच ऑन होता है और करंट का रास्ता मुकम्मल होता है, उसे हम क्लोज्ड सर्किट कहते हैं। तो सर्किट की दो हालतें होती हैं, एक है ओपन और दूसरा है क्लोज्ड। द पावर ऑफ स्विच ओपन वर्सेस क्लोज। स्विच बहुत काम की चीज है, क्योंकि यही सर्किट को ओपन भी करता है और क्लोज भी करता है, यानी ऑन भी करता है और ऑफ भी करता है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ सर्किट दैट डज नथिंग, one that lights up a room, is a single complete connection. Control lies in the ability to open or close the path. ये जो स्विच है ये उसको सर्किट को ओपन करता है या क्लोज करता है। ओपन सर्किट में से बिजली नहीं गुजर सकती और स्विच ऑफ होता है और बल्ब या पंखा जो भी है वो नहीं चल रहा होता। जबकि क्लोज सर्किट में क्लोज सर्किट कंप्लीट होता है, उसमें कंप्लीट रास्ता होता है और बल्ब है या पंखा है या जो भी चीज़ उस सर्किट में लगी हुई है वो ऑन हो जाती है और वो काम करना शुरू कर देती है। तो स्टूडेंट्स, सर्किट कि जहां हमने कहा उसके स्टेट्स दो हो सकती हैं, इस तरह सर्किट दो किस्म का भी होता है। टू टाइप्स ऑफ सर्किट बिहाइंड अ सिंगल पाथ, न्यू वेज टू कनेक्ट। अगर हमने एक से ज्यादा डिवाइसेस जोड़ने हों किसी सर्किट में तो उसके दो तरीके हैं कि हम उनको कैसे उनको कनेक्ट कर सकते हैं। एक तरीका जो है उसे हम सीरीज सर्किट कहते हैं और दूसरा जो है वो पैरेलल सर्किट होता है। Our simple circuit is just the beginning. The same components can be arranged in different ways to achieve different results. The two most common types of circuits are series and parallel. दो बहुत जो कॉमन टाइप के जो सर्किट होते हैं वो होते हैं कौन कौन से? सीरीज सर्किट। जैसे सीरीज सर्किट है, इसमें हम देखते हैं कि एक ही रास्ता है, बल्ब तो दो लगे हुए हैं, डिवाइसेस दो हैं, दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस हों लेकिन उनके लिए पाथ एक ही हो, सर्किट एक ही हो। इनके बारे में डिटेल से हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। तो पहली किस्म जो है सर्किट की वो है सीरीज सर्किट, जिसमें डिवाइसेस सीरीज में लगे होते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा लगा होता है और सारे मिलकर एक ही रास्ता मुहैया करते हैं। जबकि दूसरी किस्म का सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें हर डिवाइस के लिए एक अलग रास्ता बनाया जाता है, एक अलग सर्किट बनाया जाता है। यानी दो बल्ब हैं तो दो रास्ते हैं, तीन हैं तो तीन रास्ते होंगे, 10 हैं तो 10 रास्ते होंगे। ये जैसे घरों में जो बिजली हम यूज कर रहे होते हैं उसमें ये पैरेलल सर्किट होता है। हर पंखे को, बल्ब को, टीवी को या जितने भी डिवाइसेस लगे हुए हैं उन सब के लिए एक अलग रास्ता होता है। इन दोनों के कुछ फायदे और कुछ नुकसान हैं, इनके बारे में डिटेल से हम अगले लेसन में पढ़ेंगे कि सीरीज सर्किट क्या होते हैं, उसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, और दूसरे पैरेलल सर्किट्स हैं वो क्या होते हैं और इनके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस और इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, हम कहाँ इनको यूज करते हैं। अ सिंपल सीक्रेट, एक मुकम्मल जो इसमें सर्किट के बारे में जो हम बात की है, क्लोज लूप ऑफ फ्लोइंग इलेक्ट्रिसिटी। सर्किट जो होता है क्लोज लूप होता है, एक बंद लूप होता है जिसमें से बिजली जो है वो गुजर रही होती है और बिजली जो है वो बार बार उसमें से फ्लो कर रही होती है। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट मैजिक, इट इज सिंपली एनर्जी फ्लोइंग along a complete path controlled by a switch to do useful work। यानी एक कंप्लीट पाथ होता है जिसमें एक डिवाइस लगा होता है जिससे हमने काम लेना होता है, एक सोर्स होता है जो हमें बिजली करंट मुहैया करता है, एक कंट्रोलर है जो स्विच है जो कि इसको कंट्रोल करता है कि जब हम चाहें ऑन कर दें, जब ऑफ कर दें, और एक जो है वो
उसमें कनेक्टर्स लगे होते हैं जो कि इन कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो लेसन था बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। उसमें आज हमने पढ़ा है कि करंट क्या होता है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। फिर हमने पढ़ा है कि कंप्लीट कंपोनेंट्स ऑफ अ सर्किट। फिर सर्किट के बारे में हमने पढ़ा है कि सर्किट क्या होता है। हमने सर्किट कहा है कि कंप्लीट पाथ ऑफ द करंट इज कॉल्ड सर्किट। फिर हमने सर्किट की जो स्टेट्स है वो पढ़ी है। देयर आर टू स्टेट्स ऑफ सर्किट, ओपन एंड क्लोज। फिर हमने उसकी टाइप्स के बारे में मुख्तसर बात किया, तफसील से हम अगले लेसन में बात करेंगे। वो टाइप्स ऑफ सर्किट जो हैं वो क्या हैं, वो हैं सीरीज सर्किट एंड पैरेलल सर्किट। तो ये आज का लेसन था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन पसंद आया होगा। ये चैनल यूट्यूब चैनल तालीम मंजिल, ये तालीम तालीम और सिर्फ तालीम के लिए है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, बायोलॉजी, कंप्यूटर, उर्दू, इंग्लिश और दीगर सब्जेक्ट के लेसन मौजूद हैं। कोई 500 के करीब लेसन इसके अंदर मौजूद हैं और रोज़ाना के हिसाब से इनमें लेसन जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है, आप ताकि सीख सकें, अच्छा सीख सकें, बेहतर सीख सकें। दिलचस्पी लीजिए, पूरी तवज्जो से सुनिए। ख़ास तौर पे इसका जो इंग्लिश की जो पहला हिस्सा है जिसमें पूरा जो लेसन है उसको इंग्लिश में बयान किया गया है, मैडम ने बयान किया है, उसको बार बार सुने ताकि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाए। इसके बाद मैंने उर्दू में भी आपको समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक भी कीजिए, इन्हें दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ तालीम के लिए है ताकि मादर वतन पाकिस्तान में तालीम फ़रोग़ पा सके और हमारे स्टूडेंट जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे तरीके से सीख सकें। अल्लाह हम सब का मुहाफ़िज़ हो। अगले सबक तक अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।